will try to find the answer of these questions. What is 1 meter? What is 1 kilogram? And what is 1 second? Clear? These terms, meter, kilogram and second, these terms are not new for you. In daily life, when you go to the shops to buy something, like you want to buy some vegetables, sugar, then you buy in kilograms, grams. And if you want to buy, suppose you want to buy cloths, you buy it in meters. You want to buy ropes, you buy it in meters. And you measure the time in seconds. So these terms are not new. But have you ever thought that how there is such uniformity? Whole world accept this. Whole world measure the length in meter, whole world measure the mass in kilogram, and whole world measure the time in second. Is it by itself, or some there is behind this there is some theory? Of course, there is some theories behind this, how these were determined, how these were decided. Today we will try to understand all these things. Students, in olden days, when there were no communications, when there was no transportation, this world seems to be so large, because it takes lots of time to move from one place to the other place. It takes lots of time to communicate a message to a person who is living at a long distance. But today, within second, we can contact, we can reach to any place of the world. So when in olden days, all the countries had their own system for measurements of mass, length and time. But today, when the world has come so close that the exchanges are taking place, so the need arises for a system in which the length should be measured, mass should be measured, and second, time, that is time, should be measured for whole world in the same system. And I have also explained you this, that system is known as international system. Now, how this term was decided? In 1889 means nearly 131 years ago. How much? 131 years ago. A meeting of scientists at Severus in Paris. A meeting of scientists held at Severus in Paris. There is a laboratory of weights and measure in Severus. And in that meeting, it was decided by the scientists that how much length should be taken as 1 meter. They made a mixture of metals, two metals. Mixture of metals, you know that it is known as alloy. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? दुनिया जब पुराने जमाने में बहुत बड़ी थी तो हर एक देश का अपना अपना नापने तोलने का सिस्टम हुआ करता था. जैसे कि भारत में अलग सिस्टम था, इंग्लैंड में अलग सिस्टम था,
फ्रांस में अलग सिस्टम था, सब बहुत सारे सिस्टम थे। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, कम्युनिकेशन बढ़ गया, लोगों का एक कंट्री से दूसरे का लेन देन बढ़ गया, तो एक नापने और तोलने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ी। और उस सिस्टम में लेंथ के लिए डिसाइड किया गया कि ये मीटर में नापी जाएगी, मास के लिए डिसाइड किया गया किलोग्राम में नापा जाएगा, और टाइम को सेकेंड में नापा जाएगा। अब हम कितनी लेंथ को 1 मीटर कहेंगे? ये ऐसे नहीं होगी आप जाते हैं बाजार में कहते हैं 1 मीटर दे दीजिए, ऐसे नहीं है। वो एक सिस्टम बना हुआ है, और वो सिस्टम आज से लगभग 131 साल पहले की बात है कि पेरिस में सेवरस नाम की जगह है, वहां पर ये एक लैबोरेटरी है और उसका नाम है वेट्स एंड मेजर। ये लैब है, वेट्स एंड मेजर की लैब, इंटरनेशनल लैब है, पूरी दुनिया के सब लोग उसके मेंबर हैं, हर कंट्री जो है उसका मेंबर है। और उस वेट्स एंड मेजर में साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग हुई आज से 131 साल पहले, और उन्होंने मेटल लिया, कौन सी? प्लैटिनम 90%, और उसमें ऐड किया इरिडियम 10%। मिक्सचर ऑफ मेटल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एलॉय ऑफ प्लैटिनम 90% एंड इरिडियम 10%। दे मेड ए रॉड, एक रॉड बनाया उन्होंने प्लैटिनम इरिडियम की, और उस रॉड पर उन्होंने निशान लगाए। ये रॉड जैसे बना दिए, ये रॉड है, और इस रॉड पर इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगाए, ठीक है। और ये मेटल है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल की लेंथ चेंज होती है विद टेम्परेचर। The length of metal changes with temperature. If you increase the temperature, its length will increase, and if the temperature decreases, then it contracts. So, when you measure the distance between two consecutive marks on this rod, लगातार दो निशान के बीच के डिस्टेंस कब नापेंगे आप? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि मान लीजिए, ए दुनिया, मान लो कि इन दोनों निशान के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, और उनकी आज से 131 साल पहले कही हुई बात को हम लोग आज मानते हैं कि वो क्या है? 1 मीटर है। तो व्हाट इज 1 मीटर? 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive marks on the platinum iridium alloy rod kept in the International Bureau of Weights and Measure at Sèvres near Paris। 1 मीटर प्लेटिनम इरिडियम एलॉय रॉड के पास वाले किन्हीं दो निशान के बीच की डिस्टेंस 0 डिग्री पर मानी जाती है। 0 डिग्री पर दो निशान के बीच की डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहते हैं। और ये कहां रखी हुई है? ये रखी है सेवरस में। कहां पे है ये? पेरिस। पेरिस कहां है? फ्रांस में। तो व्हाट इज 1 मीटर? तो 1 मीटर वॉज फर्स्ट डिफाइंड in 1889, nearly 131 years ago. It is the distance between two consecutive marks on the platinum iridium alloy rod at 0 degrees centigrade, kept in the laboratory of weights and measure at Sèvres near Paris. So you can write it like this. The distance between two consecutive
marks the distance between two consecutive marks on platinum 90% and iridium 10% alloy rod at 0 degree centigrade kept in the International Bureau of Weights and Measurement at Sèvres near Paris is known as is known as 1 meter. Known as 1 meter. तो ये है 1 मीटर. साइंटिस्ट लोगों ने बना के उसका सैंपल पीस रख दिया वहां पे. अब जिस भी कंट्री को मीटर चाहिए वो वहां जाएगा और वहां से वो सैंपल पीस के बराबर डिस्टेंस का एक मार्क लेके अपनी कंट्री आए और अपनी कंट्री फैक्ट्रीज को ऑर्डर दे देगा और सारे लोग मतलब पूरे कंट्री में मीटर अवेलेबल हो जाएगा, फैक्ट्री बना के दे देंगे. इस तरह से 1 मीटर पहली बार एग्जिस्टेंस में आया और डिफाइन हुआ और उसी को हम लोग मानते आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन बात आती है ये कि सपोज सम नेचुरल कैलेमिटी टेक प्लेस, कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर वहां हो जाता है, भूकंप आ जाता है, वो लैबोरेटरी बर्बाद हो जाती है या कोई उस मीटर को वहां से जो सैंपल पीस बना के रखा हुआ है कोई उसको चुरा ले जाता है तो सैंपल गायब हो जाएगा. तो conflict will arise. Japan will say that my meter is correct, America will say my meter is correct, India will say my meter is correct. There will be conflict because sample piece is not there. So the scientists again try to define meter in such a way that which cannot be destroyed, which cannot be stolen. उन्होंने मीटर की डेफिनेशन कुछ ऐसे बनाने की कोशिश की ना तो जो डिस्ट्रॉय हो सके और ना ही जो चुराई जा सके. In 1960, this was in 1889, 131 years ago. Next definition, the scientists gave in 1960. How many years ago? Nearly 60 years ago. How much? Nearly 60 years ago from today. आज से how much? 40, 20, 60 years. Nearly 60 years ago. आज से लगभग 60 साल पहले साइंटिस्ट लोगों की फिर वही मीटिंग हुई. कहां पर? सेवरेस में. कहां है ये? पेरिस में. और पेरिस कहां है? फ्रांस में. अब तुम कहोगे फ्रांस कहां है? फ्रांस इसी दुनिया में है. सब लोग जानते हैं. अच्छा, पेरिस का नाम सब लोग जानते हैं. सब लोग पेरिस घूमने
जाना चाहते हैं। तो वहीं पर है ये लैबोरेटरी, इंटरनेशनल लैबोरेटरी ऑफ वेट्स एंड मेजर। और उस मीटिंग में फिर डिसाइड हुआ कि डिफाइन मीटर इन सच वे दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट कैन नॉट बी स्टोलन। हाउ कैन इट बी डिसाइडेड? दे टुक क्रिप्टन 86। क्या लिया उन्होंने? क्रिप्टन 86। एक गैस है, क्रिप्टन गैस, इट इज ए गैस, क्रिप्टन 86। दिस गैस इज रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिव क्या होते हैं? नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो हर सिचुएशन पे रेज एमिट करते रहते हैं। दे एमिट रेडिएशंस एंड दीज रेडिएशंस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। किसके फॉर्म में चलते हैं? वेव के फॉर्म में चलते हैं। डिफरेंट कलर्स के, इसमें से बहुत कलर के होते हैं। डिफरेंट कलर्स कैसे होते हैं? डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट कलर्स ऑफ रेडिएशंस आर एमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव गैस क्रिप्टन एंड दीज रेडिएशंस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव के फॉर्म में चलते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि यहां से एक पार्ट ऐसे और फिर ये यूं जब आया तो ये कहलाता है वन वेव। दिस इज वन वेव, दिस मच, ये इतनी लेंथ एक वेवलेंथ कहलाती है। क्या कहते हैं इसको? वन वेवलेंथ, वन वेवलेंथ। फिर यहां से यहां तक दो वेवलेंथ ये हो जाएगी, फिर ये तीसरी वेव। तो क्रिप्टन 86 एक रेडियो एक्टिव गैस है जो हर टेम्परेचर पर रेडिएशन एमिट करती रहती है। और ये रेडिएशंस जो होते हैं उसमें जो रेडिएशंस आते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने कौन सा कलर लिया? ऑरेंज कलर रेडिएशन। कौन सा कलर लिया? ऑरेंज कलर रेडिएशन, ऑरेंज कलर रेडिएशन। कौन सा कलर लिया? ऑरेंज कलर रेडिएशंस। From where these radiations are coming? They are coming from krypton 86. Clear? और ये रेडिएशंस किसके फॉर्म में ट्रेवल करते हैं? वेव के फॉर्म में। And from here to here, this is one wavelength. Now, how many wavelength will come in 1 meter? 1 मीटर में कुल कितनी वेव लेंथ आएगी? साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि कितनी आएंगी। इनकी वैल्यू आती है 16,50,463.73। हाउ मेनी वेव्स? 16,50,763.73 waves completes. Waves are completed in 1 meter. Now combine all these, सबको एक साथ कंबाइन करिए तो हम कहेंगे 1 meter is equal to 16,50,763.72. I think this is 73. 16,50,763 राउंड ऑफ करेंगे 73 हो जाएगा। 16,50,760.73 times the wavelength of orange color radiations coming from the krypton 86. krypton 86 से आने वाले ऑरेंज कलर, ऑरेंज नारंगी रंग का, नारंगी देखे हो ना, नारंगी कलर रेडिएशंस की वेवलेंथ का 16,50,763.73 गुना एक मानक मीटर के बराबर होता है। मानक स्टैंडर्ड, व्हाट इज स्टैंडर्ड? समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, जिसको बिना ऑब्जेक्शन के सारे लोग माने उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीटर, व्हाट इज स्टैंडर्ड मीटर? 1 standard meter is equal to 16,50,763.73
times the wavelength of orange color radiations coming from krypton 86. Now note down it. What is 1 meter? This was defined in 1960. One meter is 16,50,763.73 times the wavelength of orange color radiation coming from krypton 86 gas. 1 meter is 16,50,763.73 times the orange color radiations times the wavelength of orange color radiation coming from krypton 86. Clear? So this was the definition given by the scientist in 1960. But even more better and modern definition which is accepted today was given by the scientist in 1983. Nearly 27 years ago. Again meter was defined by the scientist. And according to this definition, we will, before going to define the third definition of meter की तीसरी definition जो आज हम मानते हैं जिसको, उसको define करने से पहले एक question, what is the speed of light in free space? The speed of light in free space is how much? It is 29 crore 97 lakh 92,458 meter per second. This is the speed of light in free space. Where? Free space. वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 29,97,92,458. 29 crore 97,92,458 meter per second, which is nearly equal to, if you round off it, it will be nearly 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 point यहाँ पे आएगा. You can write as 2.99 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This much meter per second. Or you can write it 2.99, it is nearly equal to how much? It is 3 into 10 power 8 meter per second. We know it. हम सब जानते हैं कि फिर स्पेस में लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 into 10 power 8 meter per second. लेकिन हम लोग इसको लेंगे 29 crore 97 lakh 92,458 meter per second is the speed of light. यानी एक सेकेंड में लाइट इतना मीटर जाएगी, एक सेकेंड में इतना मीटर जाएगी, तो 1 मीटर कितने टाइम में जाएगी? 1/5 कर देंगे. क्लियर? So the latest definition of meter is given as
distance covered by light, distance covered by light in 1 by 29 crore 97 lakh 92,458 seconds. The distance covered by light in this much second in free space will be equal to 1 मीटर. क्लियर? तो जो मीटर बच्चों तुम जाते हो और कहते हो 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, वो ऐसे ही नहीं है. बड़ी पापड़ बेला गया है इसमें. साइंटिस्ट लोग बड़ी मुश्किल से उसको डिजाइन किए हुए हैं और लास्ट में इस फाइनल पे पहुंचे हैं और सब लोग पूरे उसमें जो है वर्ल्ड में उसको यूज कर रहे हैं. और उसका सैंपल अब ऐसा है कि डिस्ट्रॉय नहीं होगा. कुछ भी हो जाए इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप इसको चुरा नहीं सकते. ठीक? और इस बेसिस पे 1 मीटर डिजाइन किया गया. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज 1 किलोग्राम? जो किलोग्राम देखते हो सब्जी वाले के पास होता है ना, लोहे वाला, फटाफट रखता है एक तराजू के पल्ले पर, दूसरी तरफ रखता है पोटैटोस, दे देता है तुमको 1 किलो आलू, 1 किलो चीनी. वो 1 किलो कैसे डिजाइन हुआ, कब डिजाइन हुआ, किसने डिजाइन किया? तो वही कहां पे, वहीं पेरिस में पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोग इकट्ठा हुए थे. जब, कब मीटर बना रहे थे तब. कौन सा ईयर था वो ईयर था 1889 जब मीटर डिफाइन हुआ था. कब मीटर डिफाइन हुआ था? आज से 131 ईयर्स एगो. ठीक? जब मीटर डिफाइन हुआ था तभी की बात है, तभी किलोग्राम भी डिफाइन हुआ था इन 1889. किस चीज का बनाया गया? जिसका वो रॉड बना था. रॉड किसका बना था? प्लेटिनम और इरिडियम का. 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम को मिलाकर के एक एलॉय बना था. उसी एलॉय का इन्होंने एक सिलेंडर बनाया. क्या बनाया? सिलेंडर. एक सिलेंडर बनाया. इस सिलेंडर की खास बात यह थी कि इस सिलेंडर की जितनी हाइट थी उतना ही इसका क्या था? डायमीटर भी था. नहीं बल्कि है, वहां है, रखा हुआ बना के. कहां पे? सेवरस में, पेरिस में, जो वेट्स मेजरमेंट की इंटरनेशनल ब्यूरो है, लेबोरेटरी है, वहां पे ये सिलेंडर आज भी सैंपल पीस बना के रखा हुआ है. नहीं तो कोई कहेगा कि मेरा किलोग्राम सही है, कोई कहेगा मेरा किलोग्राम, इंडिया कहेगा मेरा किलोग्राम सही है, अमेरिका कहेगा मेरा किलोग्राम सही है. इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक सैंपल पीस रखा है वहां पे. कहां? सेवरस में. ये सेवरस है कहां? पेरिस में. तो ये किसका बना हुआ? ये बना हुआ है प्लैटिनम का. प्लैटिनम 90% और इरिडियम कितना परसेंट? 10%. क्लियर? एक एलॉय है ये जिसका वो मीटर का रॉड बना हुआ है. एक सिलेंडर बना है जिसकी हाइट और डायमीटर दोनों क्या है? इक्वल है. ये हाइट और डायमीटर इसकी इक्वल है. इस सिलेंडर का जो मास है उसी को दुनिया 1 किलोग्राम मानती है. क्लियर? व्हाट इज 1 किलोग्राम? 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ द सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम एलॉय, केप्ट कहां रखा है? सेवरस. केप्ट एट सेवरस नियर पेरिस. So 1 kilogram is the mass of the cylinder which is made of platinum and iridium alloy whose height and diameter both are equal
It is kept at Sèvres in the International Bureau of Weights and Measure in Paris. So note down it. The mass of the cylinder, the mass of the cylinder of platinum 90% and iridium 10% alloy alloy. The mass of the cylinder of platinum 90% and iridium 10% alloy. This is alloy. Mixture is known as alloy. Mixture of metals. Alloy, whose height and diameter are equal. Whose height and diameter are equal, kept in the International Bureau of Weights and Measure. Weights and Measure at Sèvres near Paris. Is equal to 1 kilogram. Clear? So this is the kilogram which you daily see at the shops, vegetables and the other shops, and you daily buy something by comparing this kilogram. But again the same question arises, वही सवाल पुराना, कि मान लीजिए कि वो जो लेबोरेटरी है जहां पर ये सैंपल पीस रखा हुआ है वो गायब हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहां भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, उस लेबोरेटरी खत्म हो जाती है, तो उसके साथ तो ये किलोग्राम भी खत्म हो जाएगा। तो सारे देश जो किलोग्राम बना के हर दुकान पे पड़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि झगड़ा पैदा हो जाएगा, किसी का किलोग्राम छोटा हो जाएगा, किसी का बड़ा हो जाएगा, सब कहेगा मेरा वाला सही है, कोई कहेगा मेरा सही है। तो इसका जब सैंपल पीस ही गायब हो जाएगा तब हो जाएगी दिक्कत बच्चों। कब साइंटिस्ट लोगों की फिर वही मीटिंग जो हुई थी जब मीटर डिसाइड हुआ था 1960 में, 1960 में फिर ये डिफाइन किया गया कि 1 मीटर क्या होगा। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन वहां पे ली गई बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं वंडर लिक्विड किसको कहा जाता है? किस लिक्विड को वंडर लिक्विड कहते हैं? ऑफ कोर्स इट इज वाटर। व्हाट इज द वंडर लिक्विड? सारी चीजें, लगभग सारी चीजें गर्म करने पर हेल्थी, उनकी डेंसिटी जो होती है कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है। लेकिन वाटर केस में ऐसा है कि अगर आप 4 डिग्री पे जाएंगे तो इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और 4 डिग्री से अगर नीचे जाएंगे, कम और कम करेंगे तो इसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होती है। और 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे, अगर 4 डिग्री 5, 6, 7, 8 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो फिर इसका डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस, and above 4 degrees centigrade again it is decreases. So the density of water is maximum at 4 degrees centigrade.
and in the definition of kilogram, here we will use that one. Again, this is 1 kilogram. We are defining kilogram, not meter. What is 1 kilogram? The mass of 1 liter pure water. 1 liter pure water at 4 degrees centigrade. The mass of 1 liter pure water at 4 degrees centigrade is equal to 1 kilogram. क्लियर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर प्योर वाटर का जो मास होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है. दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम. आज जो किलोग्राम हम लोग यूज करते हैं वो इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है. अब हमारा तीसरा सवाल है और वो है व्हाट इज 1 सेकेंड. One second. What is 1 second? Before defining second, we will define few more terms. Noon. In Hindi, we say it दोपहर. The highest point in the sky, हमारे सिर के ठीक ऊपर, it is known as zenith. Zenith. When the sun is at our overhead, that is at the highest point in the sky, the time is known as noon. When the sun is on our overhead, the time is called noon. क्लियर? दोपहर कहलाता है जब सूरज एकदम ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है तो उसे हम नून कहते हैं. एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन one noon to the next noon is known as 1 solar day. So what is 1 solar day? 1 solar day. 1 solar day. 1 solar day. The time interval between 1 noon to the next noon is called solar day. 1 solar day. 1 solar day. As you know, 1 day is equal to 24 hours, but that is average because all the solar days in 1 year are not equal. You know, there are 365 solar days in 1 year. एक साल में 365 दिन होते हैं, सौर्य दिन होते हैं. हिंदी में इसको हम लोग सोलर डे को क्या बोलते हैं? सौर्य दिन. सौर्य दिन, इसको सौर्य दिन कहा जाता है. और सारे सौर दिन जो साल में होते हैं, जो 365 दिन होते हैं, वो बराबर नहीं होते. कोई 24 घंटे से थोड़ा कम, कोई 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा. तो इसलिए हम पूरे साल के
सारे सोलर डेज का एवरेज निकालते हैं और उसको हम कहते हैं मीन सोलर डे। मीन सोलर डे, मीन सोलर डे, मीन सोलर डे। The average of all solar days in 1 year is called mean solar day। क्लियर? सारे सोलर डे का एवरेज, पूरे साल के एक 365 जो सोलर डे होते हैं उन सारे सोलर डे का आप एवरेज निकाल लीजिए, उसको हम कहते हैं मीन सोलर डे। और इस मीन सोलर डे को आप डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 86,400 पार्ट में। तो एक पार्ट को हम कहते हैं 1 सेकेंड। तो व्हाट इज 1 सेकेंड? 1 सेकेंड इज 1 by 86,400th part of one mean solar day। एक सोलर डे का 86,400वां भाग एक मानक सेकेंड के बराबर होता है। मानक सेकेंड, स्टैंडर्ड सेकेंड, एक्सेप्टेड बाय ऑल। 1 by 86,400th part of one mean solar day is equal to 1 second। क्लियर? सोलर डे का 86,400वां भाग 1 सेकेंड के बराबर होता है। Now, in the same year, that is in 1900, this definition was also given in the same year, 1900। In 1900, मतलब कि आज से कितने साल पहले? लगभग अभी जो चल रहा है ईयर 2020, 120 साल पहले, 120 years ago, लगभग 120 साल पहले साइंटिस्ट ने अर्थ को सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा था उसको कैलकुलेट किया और उस टाइम को फिर उसने डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3,56,925.9747 पार्ट में, इतने पार्ट में डिवाइड किया और ये कहा कि ये एक पार्ट जो है वो 1 सेकेंड के बराबर होगा। देन व्हाट इज 1 सेकेंड? 1 second is 1 upon this much, 3,15,56,925.9747वां भाग या इतना पार्ट of the time taken by Earth to complete one round around the sun in 1900, in the year 1900 is equal to 1 second, is equal to
1 सेकेंड। क्लियर? तो 1 सेकेंड क्या होता है? इस साल 1900 में पृथ्वी को सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगा था, उस समय का 3,15,56,925.9747वां भाग 1 मानक सेकंड के बराबर होता है। 1/3 crore 15 lakh 56,925.97 part of the time taken by the earth to complete one round around the sun in the year 1900 is equal to 1 second. This is the another definition of second. Now there is another definition also. What is that? Third definition of second. Third definition of second. Third definition. ये क्या है? बच्चों, जैसे सारे एलिमेंट्स हैं ना, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, वैसे ही एक एलिमेंट होता है सीजियम। सीजियम 133। सीजियम 133 ये एलिमेंट लगा होता है किसमें? एटॉमिक वॉच में। एटॉमिक वॉच, एटॉमिक वॉच में ये सीजियम एलिमेंट लगा होता है। सीजियम एलिमेंट के इसके जो एटम होते हैं, एटम्स ऑफ सीजियम एलिमेंट वाइब्रेट। ये क्या करते हैं? वाइब्रेशंस करते हैं। वाइब्रेट्स। अब ये वाइब्रेशन अगर हम काउंट करें तो 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन करते हैं पता है तुमको? ये करते हैं 9,19,26,31,770। 9,19,26,31,770 वाइब्रेशंस करते हैं। करते मतलब ये तो वाइब्रेशन कंटिन्यूअस करते रहेंगे, लेकिन इतना वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगता है वो टाइम 1 स्टैंडर्ड सेकेंड के बराबर होता है। तो व्हाट इज 1 सेकेंड? 1 second is the time interval in which the cesium atoms in atomic watch completes 9,19 crore 26 lakhs 31,770 vibrations। परमाणु घड़ी में लगे हुए सीजियम के परमाणु जितनी देर में 9,19,26,31,770 बार कंपन कर जाएं, वो टाइम, वो समय अंतराल 1 सेकेंड के बराबर होता है। क्लियर? द टाइम इंटरवल इन विच द सीजियम एटम इन एटॉमिक वॉच कंप्लीट्स 26,31,770 vibrations is equal to 1 second। क्लियर? परमाणु घड़ी में लगे हुए सीजियम के एटम्स जितनी देर में 9,19,26,31,770 बार वाइब्रेशंस कर जाएं, वो समय अंतराल 1 सेकेंड के बराबर होता है। द टाइम इंटरवल इन विच द सीजियम एटम इन एटॉमिक वॉच कंप्लीट्स 9,19 crore 26,31,770 vibrations is equal to 1 second। And that is the end of this video, and we will meet with the new video on next topic. Till then, bye bye.